This is Sajir Sheikh from Mango Pass, and today for Superstar Saturdays, I fumbled already. Today for Superstar Saturdays, we'll be going live with Ijaz Aslam, and yeah, we're gonna have a fun conversation. We're gonna play some games, and let's see how it goes. Have I logged in from the wrong account? No, I haven't. Hi, Ekta. Hi, Umar. Um, This is Mango Bus का account, right? I go live from the wrong account. Okay, seems like this is the right account. Thank you, sister. ये जो मेरी hype girl आती है ना एकता हर live session में, love that. Please do a live chat session with Mikal Zulfikar. We will try our best. Ijaz Islam now has the world record for most live sessions. That's good. That's great. Oh, world quick. So why not? Okay, cool. He's here. Let's add him here and get started. Hi, Jazz. How are you? Hello, how are you? I'm good. I'm good. How's everything going? All good. Shoot is pretty hectic these days because Yeah. you must be watching this drama called Nand. It's doing pretty good. So उसकी shoot ऐसे चल रही है कि जैसे आज shoot होती है next day on air जाना होता है. So it's that kind of a panic situation because it's 4 days in a week and it's a new slot, something new. ARY has created a new slot. तो वो बहुत जरा सा it's really tough. So there's no gap in between. आज हमारी शूट जो है वो थोड़ी सी कैंसिल हो गई because two of our actors were not feeling well. Okay. So So now like they're otherwise. how are you dealing with everything together? So like we're still in the middle of a pandemic. You know, it's been a crazy couple of months, and now you're Yeah. back to work. So how have you been dealing with everything? यार can't do much about it. बस जो precautions होती हैं वो हम ले रहे होते हैं on set. वो जरूरी होता है. Like actors cannot wear masks while we are in the scene, we are acting. But otherwise फिर हम अगर एक कमरे में होते हैं तो हम मास्क लगा लेते हैं. Then वो sprays होते हैं वो हर थोड़ी देर में spray करवाते हैं. Like 3-4 times in a day. और ट्राई करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग जितनी मेंटेन हो सके वो करें बट आसान नहीं है बिकॉज देयर टू मेनी पीपल ऑन द सेट. अब कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है सफाई का. स्पेशली आई एम वर्किंग विद बिग बैंग अभी फिलहाल और जियो का एक प्रोजेक्ट कर रहा था तो दोनों प्रोडक्शन हाउसेस सेवन स्काई बिग बैंग टेक रियली गुड केयर. तो वो काफ़ी ऑर्गेनाइज सेटअप है. तो इतना बस वही जो प्रिकॉशंस हैं वो सब उसी तरह कर रहे हैं शूट्स बिकॉज ऑब्वियसली कोविड की वजह से गैप बहुत आ गया था शूट्स में. सारे ड्रामे एक साथ होने हो गए बिकॉज गैप बहुत आ गया था और उनके पास चैनल्स के पास कंटेंट भी ख़त्म हो रहा था. सो इस वजह से फिर वो जल्दी जल्दी सब चीज़ें स्टार्ट हुई हैं. नाउ सब ऑन एयर हो गई है एक साथ. So it's different, it's fun, but constantly working, everybody. Yeah. So obviously, you know, there's so much bad stuff that happened in 2020, and I'm sure like a lot of people, you know, on a personal level experience a lot of stuff mentally as well. But let's talk about the good things that happened to you in 2020. So what's the best thing that has happened to you this year? 2020 for me was, other than COVID, I think it was good because when 2020 started, I started 2 projects. In fact, 3 projects और उसके बाद फिर मैंने travel भी कर लिया. So, I can't complain that I didn't have vacation. So, early this year, once, I came back to Pakistan. जैसे ही मैं आया हूँ उसके थोड़े दिन के बाद क्या 3-4 दिन के बाद वो सब लॉकडाउन और सारा चीजें शुरू हो गई. Then we couldn't shoot और उसके बाद फिर रेस्ट मिला बहुत सारा like 3-4 months and spending time with family, on yourself, working out at home.
सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके जो हम बाहर जाके वर्कआउट जिम में करते थे, यू नो, आई कुडंट थिंक ऑफ वर्किंग आउट एट होम। मैं कभी कर ही नहीं सका था। मैं हमेशा जब भी ट्राई किया घर में करने का, मुझसे होती नहीं थी वर्कआउट। सो व्हेन आई सेड कि देयर इज नो ऑप्शन, सो आई हैड टू यू नो got my basic things जो workout के लिए, like resistance bands, and you know I tried to be little creative। फिर खाने बहुत बनाए। सो यू नो अपनी सेल्फ रिलैक्सिंग थेरेपी, बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया अपने आप के लिए, और फैमिली के साथ वो टाइम अच्छा स्पेंड हुआ। फिर उसके बाद जब रमज़ान आया तो रमज़ान में थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट हुआ। देन आफ्टर दैट फिर वो रेगुलर हो गया। अब तो चीज़ें काफ़ी नॉर्मल है, काफ़ी बेहतर है, और अल्लाह करे कि वापस कैरियर करना हो कोविड कोरोना। तो Have you also been like super active on social media, like doing lives and stuff? Because somebody before you joined in, somebody said Ijaz Aslam has broken the record for the most live sessions. Have you been no, doing no, that a lot? no, initially I was like once a week, जब जब कोविड में था मैं, तो बस once a week मैंने किया था, वो भी 4-5 दफा। उसके बाद फिर बस सुस्ती हुई, नहीं किया। एंड आई थिंक रमजान में मैंने एक सेशन किया था, दैट वाज यू नो अ कुकिंग सेशन विद फैसल। तो वो एक मैंने रमजान की किया था। उसके बाद मैं अब लाइव आया हूँ, लाइक मे बी आफ्टर 3 or 4 months। सो आई डिडंट गेट टाइम टू गो लाइव। रात को शूट खत्म होती है और फिर आप घर आते हैं लाइक 10:30-11 o'clock। उसके बाद फिर हिम्मत नहीं होती। तो लाइक फॉर द पास्ट 3 months आई डिडंट गो लाइव। Okay, सही है. Let's talk about like all the stuff you're working on and your upcoming projects. What can we see? Like, what are we going to see next? आज हमने एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया है जियो ने। इट्स कॉल्ड उड़ान, और वो आने वाला है। इट्स कमिंग सून। आई डोंट नो द डेट येट, बट इट्स गोइंग टू कम सून। और उसमें मेरा कैरेक्टर नेगेटिव है। Excuse me। और उसमें कैरेक्टर नेगेटिव है, नेगेटिव इन द सेंस कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का ओनर है, और वो एक्सप्लॉइट करता है लोगों को काम के बहाने से। सो वो जो मेन कैरेक्टर है ड्रामे का, उसके साथ वो समहाउ कनेक्ट होता है। फिर वो उस तरह का एक ट्रैक है। तो वो मैंने किया है। बट राइट नाउ एक अभी मैंने प्रोजेक्ट किया था, लोग क्या कहेंगे, तो उसमें दैट वाज वेरी इंटेंस। तो उसको देख के भी, आज उसकी 4th एपिसोड थी, तो दैट वाज समथिंग वेरी इंटेंस। तो वो बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट था इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, इन टर्म्स ऑफ यू नो उसको उसकी फील, और वो अभी तक इतना इंटेंस है वो प्रोजेक्ट कि उसकी जब उसको आप देखते हैं ना, सो यू स्टिल गेट यू नो, थोड़ी देर के लिए आप शॉक में चले जाते हैं कि बट इट वाज वेरी क्लोज टू रियलिटी। लोगों को बहुत सारे लोगों ने उससे रिलेट किया, आजकल के हालात से रिलेट किया उस ड्रामे को देखकर। फिर एक ड्रामा चल रहा है नन, वो भी ARY पर चल रहा है। वो एक नया स्लॉट जो मैं बता रहा था क्रिएट किया है ARY ने 7 to 8 का। तो उसमें बड़ा ड्रामा लगाया है उन्होंने, और वो इट्स डूइंग रियली वेल। रेटिंग्स भी अच्छी हैं यूट्यूब पे। उसकी व्यूअरशिप लाइक मिनट्स में, मिलियंस में जाती है। तो वो एक्सपेरिमेंट बड़ा सक्सेसफुल है, और पीपल आर वाचिंग इट। सबको सब कह रहे हैं हमारे घर में भी ऐसी एक नन है, हमारी फैमिली में भी है। तो सब लोग रिलेट कर रहे हैं उससे। तो उसी की शूट चल रही है आजकल बस। तो उसके बाद फिर मेरा एक तो है, फिर बहुत दिन हो गए कॉमेडी नहीं की। ईद पे मैंने 2-3 कॉमेडी टेलीफिल्म्स की थी, बट वैसे लॉन्ग टर्म कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। तो एक प्रोजेक्ट है इन द पाइपलाइन, आफ्टर सितंबर फिर उसके ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह। Okay, cool. Ijaz, I'm going to ask you a few questions sent in by your जी। fans, and uske baad we'll move on to the game section. Okay. So ओके। the first question is actually about you and Faisal Qureshi. It's by Alia, and she's asking, how did you and Faisal Qureshi become friends? हाउ डिड वी बिकम फ्रेंड्स? फैसल एक दफा जब नया नया शुरू में लाहौर से आया था, तो हमने एक टेलीफिल्म की थी, और उसमें हमारी दोस्ती हो गई थी। बस जैसे नॉर्मल एक आप काम करते हैं तो दोस्ती हो गई थी। फिर जब वापस फैसल कराची मूव हुआ, तो हमने एक प्रोजेक्ट किया था, कॉमेडी सिटकॉम था, मैं और तुम। तो वो हमने कई साल किया। उसमें फिर हमारी बहुत दोस्ती हुई। फिर हम एक लग स्टाइल अवार्ड्स हुए थे दुबई में,
आई थिंक सेकंड या थर्ड या फोर्थ अवार्ड्स थे नेक्स्ट टाइम पे। तो हम लोग दुबई गए, तो वहाँ पर साथ ट्रैवल किया, तो हम लोग हुमायूं, बाकी अदनान वगैरह सब, वो तो पहले से ही दोस्ती थी, पैसा से जरा कम थी, तो वहाँ फिर जरा ज्यादा दोस्ती हुई। ट्रैवल जब आप साथ करते हैं तो आपको पता चलता है आप जिसके साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो कैसा है क्या है। तो बस वो फिर वहां पे दोस्ती हुई, फिर यहाँ आए तो हमने वो प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। तो बस उसके बाद फिर हमने 4-5 साल वो किया, उसके साथ साथ ही हमने सीरियस प्रोजेक्ट्स के साथ बहुत किए। सो इट वाज लाइक दैट। फिर वहां से फिर दोस्ती रही, तो फिर काफी अच्छी हुई दोस्ती हमारी। Okay, cool. Mariam wants to know, if you could time travel, where would you go? To the past or to the future? आई थिंक दोनों। पास में एवरीबडी लव्स देयर चाइल्डहुड, तो दिल चाहता है कि वो चाइल्डहुड वाला जो पार्ट है जिंदगी का वो कभी खत्म ना हो। ओके फ्री, माय चाइल्डहुड वाज प्रीटी गुड, बहुत मजा आता था, बहुत स्कूल लाइफ बहुत अच्छी थी। देन स्कूल के बाद जो आप अपने जहाँ आप रहते हैं नेबरहुड, एक वो लाइफ होती है, वो भी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त है, सारे इधर उधर हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। तो वो लाइफ आई आई मिस कि वो है। और फ्यूचर, ऑब्वियसली फ्यूचर में जाने का हर एक को शौक होता है, और वो है जाहिर है, मैं दोनों चीजें करूंगा अगर मुझे मौका मिले। Sorry, ठीक है. She also wants to know, what's one animal that you're really afraid of? I'm afraid of animal, yeah, reptile animal. I just don't like snakes. Snakes हो गए, या फिर आप कह लें उस तरह की जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, क्रोकोडाइल या वो बड़ी वाली लिजर्ड्स, वो उस तरह की चीजें हैं। Is it I because they don't look like that. disgusting, or is it because like आई थिंक वही डिस्कस फैक्टर होता है। yeah, और yeah, वो है तो सही, स्केरी फैक्टर भी है स्नेक का तो है। right. Did you ever hear that story where like लोग बोलते थे कि आपके बाथरूम में से like crocodile या snake निकल सकता है, and like I was terrified of using the bathroom as a child because I was like, what if a snake comes out? हाँ Like वो that was हाँ पहले पहले जाहिर है कराची में या पहले जितने भी एरियाज हैं वो इतने आबादी नहीं होती थी ना, जैसे नए नए एरियाज डेवलप हो रहे थे कई कुछ सालों पहले। जैसे डिफेंस में बहुत सारे एरियाज थे जो कि बड़ी आहिस्ता डेवलप हुआ था, डिफेंस क्लिफ्टन पर वो। तो जब जो नया एरिया डेवलप होना शुरू होता था वहाँ शुरू में आबादी कम होती है, तो ऑब्वियसली वहां पर फिर स्नेक्स और ये और इस तरह की चीजें होती है, तो वो निकलते थे लोगों के घरों में, नो डाउट। okay. Okay. Another question is, which three people, living or dead, would you invite to your fantasy dinner party? दो लोगों का तो मुझे पता है, तीसरे का मुझे सोचना पड़ेगा। एक तो ब्रूस ली, Okay. Bruce Lee, karate. So Okay. I really admire Bruce Lee because he was a very, एक तो बहुत इंटेलिजेंट इंसान था, बड़ा जबरदस्त अपने काम में माहिर था, एंड ही वेंट टू वर्ल्ड। आई एम रियली फॉन्ड ऑफ हिम। और दूसरा मोहम्मद अली द बॉक्सर, Okay. और थर्ड इज चार्ली चैपलिन। तो ये Okay. तीन लोग Cool. आई वुड रियली लव टू मीट एट सम पॉइंट। कोई Same. टाइम मशीन आ जाए तो मैं पीछे चला जाऊंगा, ऐसा कुछ हो जाए। Same. Okay, cool. Let's move on to our game section. This is the first section is fairly easy. It's about your favorites. Okay. So, Okay. favorite male co-actor. फैसल कुरैशी, आई एम वेरी कंफर्टेबल बिकॉज हम लोगों की जो एक्टिंग का स्टाइल है वो एक दूसरे को पता है, तो वो बड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं हम लोग जब साथ एक्टिंग करते हैं। सो इट्स रियली फन एंड इट्स रियली गुड। और दूसरा नुमान एजाज, सो नुमान Okay. के साथ भी मेरी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री बनती She. Favorite female co-actor. है। सबा कम, उसकी वजह भी मैं बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि सबा जो है वो शी इज वेरी फोकस्ड, शी रियली पुट्स हर हार्ट एंड सोल इन द कैरेक्टर व्हाटएवर शी इज डूइंग।
and it's always good fun because इतना एनर्जी और इतना ऑरा होता है सीन में जब अच्छे एक्टर्स आपके साथ हो. Sabha is one of those. So I think she's pretty good to work with. Okay, sir. Favorite Pakistani singer? Atif Aslam. Anytime. Favorite Pakistani drama? Favorite Pakistani Drama. drama. अपना ड्रामा या किसी का भी हो. किसी का? आई थिंक वो जो था फवाद और मायरा वाला नाम भूल गया. हमसफर. हमसफर. सर नाम भूल गए हम सब. हाँ सही नाम हो भूल गया. गया बस. ठीक है. गाना फेवरेट याद है पाकिस्तानी. सर. सही. फेवरेट पाकिस्तानी मूवी? फेवरेट पाकिस्तानी मूवी मैंने बचपन में देखी थी मूवी आईना. तो Okay. वो मुझे बहुत पसंद थी. और अगर अब आज की बात करें तो मुझे वो जो लास्ट आई थी हुमायूं की पंजाब नहीं जाऊंगी, Okay. वो अच्छी थी. That was pretty good. ठीक है. Okay, so the next bit is insight into you. Okay, so my main driving force in life. My passion, and I would say मैं जो भी काम कर रहा होता हूँ वो my passion drives me कि ये काम करना है. So पैशन होता है किसी चीज का तो ही मैं वो कर रहा होता हूँ. वो चीज जैसे एक्टिंग हो गई या और कोई काम हो गया जो मुझे शौक बहुत ज्यादा होता है. एक पैशन मैं जैसे बहुत पैशनेटली करता हूँ मैं कोई भी चीज करती Okay. Song that describes your point in life. Sorry, your life at this point in time. हूँ. एक वो गाना है ना, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो. Yeah. तो वो एवरी सिचुएशन एवरी टाइम हर वक्त फिट होता है आपके ऊपर. Okay. सही. ठीक है. If a book was written about your life, what would it be called? आई डोंट नो, सोचना पड़ेगा इसके लिए. Probably go with the flow or something like that. Follow your Okay. basic instinct or something like that. Follow your instinct. ठीक है. Three things I've learned after joining the industry, after becoming a star. After joining the showbiz industry, that I would say, I learned कि जो काम आपने करना है वो आपने खुद करना है. कोई दूसरा आगे नहीं करेगा आपका काम. और ये हर प्रोफेशन में अप्लाई होता है. चाहे कुछ 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 कोई भी काम आप कर रहे हैं तो जो काम आपने करना है वो खुद करना है आपने. कोई आपको नहीं करेगा. एंड इफ यूर गोइंग डाउन एंड इफ यूर इन अ सिचुएशन उससे भी आपको खुद बाहर आना है. और आपने अपना जिस चीज में आज जिस चीज का आपको शौक है, जिस चीज का आपको पैशन है, आपको उस काम में उस एक डायरेक्शन में अपनी सारी एनर्जी सारी फोर्स लगानी चाहिए. फिर आपकी सिचुएशन आपके अराउंड जो है सराउंडिंग में जो चीजें हैं वो खुद ब खुद जो है वो कनेक्ट होती जाती है. सो आई थिंक यू हैव टू गैदर ऑल योर एनर्जीज एट वन प्लेस और फिर आप अपने आप को फ्री फ्लो छोड़ दें. आप जैसे पानी में आप छोड़ देते हैं ना अपने आप को, फिर आप फ्लोट होते रहते हैं. So I think that's what I've learned because showbiz में और भी दूसरी चीजों में आपको कंपटीशन बहुत मिलता है, नेगेटिविटी भी बहुत मिलती है. आपको पता भी नहीं चलता कौन सही है कौन नहीं है. So you have to keep on figuring out on your own. आपको अपना दिमाग अपनी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी रखनी होती है, आंखें खोल कर चलना होता है और जो चीज आपको सही लग रही होती है वो आपको करनी चाहिए बजाय इसके कि आप किसी की एडवाइस लेकर और आप उसके ऊपर चलें. समटाइम्स यू नो पीपल गिव यू रॉन्ग एडवाइस. सो यू हैव टू हैव योर आपको अपनी गट फीलिंग के ऊपर चलना बड़ा जरूरी है. ये दो तीन चीजें हैं जो मैंने सीखी अपने टाइम. Good. One thing people assume to be true about you that actually isn't.
People think that I'm very health conscious, which I am. I eat good, I eat healthy. But there is one concept people always think that I'm always dieting, which I never do. मैंने जिंदगी में कभी डाइट नहीं की. I, just hate the concept of dieting. I eat right, Okay. and that's my lifestyle. So it's basically the lifestyle. It's not that I diet. I I never diet. I eat healthy. I eat according to the time. तो मैंने अपने आप को फिट कैसे रखा हुआ है वो सभी लोग पूछते हैं कि यार क्या करते हो, क्या कैसे नजर आते हो, इस तरह ये क्या. तो वो उसका सिर्फ यही है कि मैंने थोड़ा सा डिसिप्लिन रखा हुआ खाने पीने में शुरू से. हेल्थी रूटीन है मेरी. आई डू माई रिसर्च. चाहे खाने की कोई चीज़ हो, चाहे पहनने की कोई चीज़ हो, या कुछ कुछ भी मुझे नई चीज़ लेनी हो, so I first do my research. Then after research I pick the thing which suits me best. So मैंने अपना lifestyle ऐसा रखा हुआ है. So I think everybody should do that. Rather than पहले आप मोटे हो जाएं, फिर उसके बाद आप डिप्रेशन में चले जाएं कि यार अब क्या करें. तो बेहतर ये है कि आप लाइफस्टाइल अपना ऐसा रखें कि आप एक स्टडी सब चीजें. ठीक है. Most challenging role till date. एक मेरा ड्रामा था किस्मत, जो जियो टीवी पे चला था काफी अर्सा पहले. एक वो रोल बहुत चैलेंजिंग था. एक वो डॉन का रोल था जो कि साइकोटिक उसको डिसऑर्डर था, और वो रोल बड़ा चैलेंजिंग था. उस ड्रामे में जोहेब हसन थे, ईमान अली थी. सो वो बड़ा चैलेंजिंग रोल था. मुझे बहुत मजा आया था करने में. और दूसरा अभी जो मैंने किया है लोग क्या कहेंगे, ये भी बहुत चैलेंजिंग रोल था. चीफ मेरा ड्रामा था बीच में जो लास्ट ईयर आया था. वो भी एक रोल था जिसमें एक पॉजिटिव पर्सन होता है. वो आहिस्ता आहिस्ता अपने भाई को बचाने के चक्कर में नेगेटिव हो जाता है. वो इवेंचुअली वो पैरालाइज हो जाता है. तो वो बहुत चैलेंजिंग पार्ट था उस चीफ ड्रामे का. जो लास्ट पार्ट था ना चैलेंजिंग, उसको शूट करना, वो सारा मुंह बना के, और वो एक बहुत चैलेंजिंग था. बट बहुत इंटेंस था. आई लाइक डूइंग इंटेंस कैरेक्टर्स, जिसमें कोई कैरेक्टर बनता है इंटेंस रोल्स होता है, ऐसा आई लव डूइंग दैट. तो अभी मैंने जो किया था, जो हसीब का रोल है, लोग लिख भी रहे हैं इसमें बार बार. वो सुसाइड वाला उसमें एक सीन था जो कि टीवी पर नहीं चला था बट यूट्यूब में आया था, तो काफी मीडिया पर उसमें बात हुई. तो वो बहुत मुश्किल रोल था. वो उसको करने के लिए वो सब बड़ी हिम्मत चाहिए थी. और वो मैंने इतनी उसकी जो लाइंस थी, उसका स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसको फील करना, वो अपने इट वाज वेरी, बहुत मैं स्ट्रेस में आ जाता था वो पढ़ के. और इसीलिए उसके अंदर इतनी फील है. लोगों ने इतना पसंद किया. मैं 3 एपिसोड्स में मैं था, कि 3 एपिसोड्स के बाद वो सुसाइड कर लेता है वो आदमी नसीब जो है, प्रेशर में आके. तो वो इट वाज बेसिकली, बाद लोगों ने कहा आप सुसाइड आप लोग प्रमोट कर रहे हैं और ये इस तरह की चीज. वो ये नहीं था कि हम सुसाइड प्रमोट करें. उसमें उसको दिखाने का मकसद यही था कि आपके सराउंडिंग्स में जो आपके लोग रहते हैं, वो अगर किसी डिप्रेशन या किसी स्ट्रेस में है, तो उनको जरा देखें कि उनका बिहेवियर एबनॉर्मल तो नहीं है बिफोर दे टेक एनी सीरियस स्टेप. तो वो एक मैसेज दे रहा था लोगों को कि आजकल के हालात में भी बहुत डिप्रेशन है, बहुत लोग परेशान हैं. तो अपने लोगों का ख्याल करें, उनको उस डिप्रेशन से निकालें. और लोग कहते थे कि ऐसा क्या हो गया कि भाई सुसाइड कर लिया उसने, कोई चीज बेच देता, नहीं था. लोग ये नहीं सोचते कि ये ड्रामा है, और ड्रामे में दिखाना ये होता है. 2-3 एपिसोड्स के अंदर सारी अब इतनी फैला तो नहीं सकते कि चीज बेचने जा रहे हो. जो जिस आदमी की टेंडेंसी, मेंटल टेंडेंसी सुसाइडल हो, उसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं. वो नहीं सोच सकता कि मैं ये चीज बेच दूं. वो उसको लगता है मेरी दुनिया खत्म हो गई है. सो ये एक मैसेज देना था उसमें, जो लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता था एट टाइम्स कि भाई वो मैसेज है जो हम दे रहे हैं कि जो सुसाइडल इंसान होता है वो सोच नहीं सकता. उसको लगता है सब बंद हो गया, और वो अपने आप को मार के वो समझता है कि मैं मार लूंगा तो सब चीजें सही हो जाएंगी. लेकिन बाद में वो पीछे उसकी फैमिली का क्या हाल होता है, वो अब लोग देख रहे हैं उस ड्रामे में, आगे समझ आएगा. Okay, cool. One thing that you thought would be true about the industry, but actually isn't.
आई थिंक शोबिस इंडस्ट्री के अंदर ये जज करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन आपके साथ सिंसियर है, कौन आपका दोस्त है, कौन नहीं है। लोग टाइम के साथ चेंज होते हैं बहुत। मैंने देखा है आप अप्स एंड डाउन्स आते हैं हर एक के करियर में, तो लोग उसी तरह आपके साथ लोगों का भी बिहेवियर चेंज होता है। सो दैट इज अ वेरी बैड पार्ट। वो लगता है ये है कि ग्लैमर बहुत है और जो सब लोग बहुत सबकी लाइफ बड़ी ग्लैमराइज्ड है, लेकिन इसके पीछे बहुत स्ट्रगल होती है। एक्टर्स हों या डायरेक्टर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, सबकी एक स्ट्रगल होती है। कोई किसी लेवल पे अगर पहुंचता है तो वो बहुत स्ट्रगल करके पहुंचता है। ऐसा नहीं होता कि वो रातों रात एक बस चिराग जला और हो गया। बट वो बात ये है कि जो लोगों को ग्लैमर बहुत नजर आता है, उसके पीछे एक तो स्ट्रगल है और दूसरा ये है कि ये चीज सब लगता है ना कि जैसे अवार्ड सेरेमनी या कुछ हो रही है कि बहुत लोग सब एक दूसरे से क्लोज हैं ये, लेकिन हर एक दूसरे का कंपटीशन है, तो आपको ये जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कौन सही है कौन नहीं है। तो ये आपको खुद सोचना होता है। सो ये हर इंडस्ट्री में मेरे ख्याल में होता है, चाहे आप बैंकिंग ले लें, चाहे आप कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाएं, मेरे ख्याल में हर जगह ये होता Okay. Weirdest fan compliment you ever received? होगा। बहुत बहुत सारे आते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्स। What's something that stuck with you, like the weirdest? मेरे हाथों के ऊपर बहुत लोग कमेंट करते हैं, पीपल थिंक आई हैव वेरी बिग हैंड्स, तो वो बड़े अजीब अजीब That's आते हैं। तो हाथों के really ऊपर आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं मेरे हाथों के ऊपर। ये देखें आप। सो I mean, okay. तो If you, I swear, if you like start going into the Google rabbit hole, you will find some weird page like a Ijaz Aslam hand or something. I once found like Sabah Kamar feet. So like randomly. So I'm telling you, like ये hand के fan pages बने होंगे कहीं पे. People अच्छा, are really, really interesting like that. really? Yeah. Best piece of advice I've received. बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस माय फादर ऑलवेज टेल्स मी के अपने काम से काम रखो। Okay. तो उसमें जो है ना, इंसान जो है वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होता, परेशान नहीं होता कि दूसरा क्या कर रहा है। उसमें उसका कंसर्न नहीं होना चाहिए कि दूसरा जो भी कर रहा है आप क्या कर रहे हैं, दैट मैटर्स। सो Right. अगर आप दूसरे को फॉलो करते हैं कि वो क्या कर रहा है, तो फिर आप अपनी डायरेक्शन से निकल जाते हैं। फिर आपको लगता है ये सही कर रहा है, मैं सही नहीं कर रहा, या ये मुझे करना चाहिए। आपको जो सही लगता है वही इम्पोर्टेंट है। आपकी जो गट फीलिंग कहती है वही सही है। तो आप अपनी गट फीलिंग को फॉलो करें रादर देन फॉलोइंग अदर्स। कई दफा होता है ना, जैसे लोग बिजनेस करते हैं, यंगस्टर्स नया नया काम स्टार्ट करना चाहता है कोई, तो वो मैं देख रहा होता हूँ कि 16-17 साल के लड़के होते हैं जब, तो वो उनको ये होता है कि यार फलाने दोस्त के जो अब्बा हैं वो ये काम करते हैं, बड़े और बहुत उनके पास दे वेरी हैप्पी, बड़े फलान चीजें हैं, बड़ी गाड़ी है, ये है वो है। तो वो कहते हैं हम भी यही काम करते हैं। वो कहता है रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट। कोई कहता है वो ये बिजनेस कर रहे हैं, हम भी ये। लेकिन आप फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ कि आपको क्या अच्छा लगता है, या आप क्या कर सकते हैं। आपका जो पैशन है, जो आपका शौक है, अगर आप वो चीज करेंगे ना तो आप भी उतने ही सक्सेसफुल होंगे। सो प्लीज ये ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज एन एडवाइस फॉर द यंगस्टर्स। Okay. Cool. So the next bit is just have you ever? So it's just yes or no. Okay. Have you ever that you remembered them when you actually didn't? I didn't hear that. Have you ever told a fan that you remembered them when you actually didn't? Have you ever Told a समझ fan that you remembered them when you actually didn't. uh, yes. Okay, nice. Have you ever gotten angry on set? Yes, many times. बहुत दफा होता है। कई दफा Have you होता ever है। gotten mad at a co-star? Yes, maybe not much, but once or twice. Okay. If somebody is not being professional or
not being focused. So वो फिर I lose my cool. Okay. Have you ever praised someone's work even if you didn't actually like it? नहीं, अगर मुझे समझ नहीं आता तो मैं खामोश हो जाता हूँ, अगर अच्छा लगता है तो I praise. Okay. Have you ever been stalked by a fan? Yes, कई कई दफा. Okay. Okay. Have you ever stalked a fan back on social media? नो आई, कोई अगर कर रहा होता है फजूल की बात या कमेंट जो कि मुझे लगता है नेगेटिव है, तो मैं उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देना चाहता उस इंसान को. आई जस्ट ब्लॉक दैट पर्सन. इस पे भी आ रहे हैं बहुत सारे जिनको Yeah. बहुत Sir, फायदा वो है. बस आई जस्ट idols ब्लॉक होते हैं. सच पीपल. Yeah. आई इग्नोर Yeah. एंड I आई keep जस्ट removing ब्लॉक. people, but they keep coming back. You know, they're so dedicated. They make new accounts and then they watch the entire फारिग live. है ना, फारिग. हाँ, मतलब फारिग I आदमी जो है वो यही काम yeah. करेगा. वो हेट्रेड होती है एक, वो होता है ना, कि उनका सिर्फ ये होता है कि हम क्यों नहीं ये कर रहे, या हमें क्यों नहीं अटेंशन मिल रही. सो बेसिकली वो अटेंशन लेने के लिए कर रहे होते हैं. तो फारिग लोग हैं, इन लोगों से क्यों मुंह लगने का फायदा नहीं होता. सो आई जस्ट ब्लॉक ब्लॉक दैम. ठीक है. Okay, so you have to अभी describe the आए. following. Sorry? एक आए थे अभी फारिग. Yeah, I'm gonna start removing people, but like the next bit is you have to describe the following people or things in one word, okay? So the first thing that comes to your mind. Humayun Saeed. कूल. Cool. Adnan Siddiqui. चार्मर. Okay. Faisal Qureshi. डेडिकेशन. डेडिकेटेड. Dedicated. Okay. Fahad Mustafa. हीरो. Sabah Kamar. स्टार. Okay. Myra Khan. आइकॉन. Ooh, icon. शी इज. Okay. लॉट ऑफ पीपल लव हर, फॉलो हर, एंड आई थिंक जिसको लोग पसंद करते हैं आपको अप्रिशिएट करना चाहिए. Absolutely. Fawad Khan. ही इज अ सुपरस्टार. Okay. Sahir Lodi. साहिर लोधी, masses guy. He's Okay. from the, he represent masses. Okay. Imad Irfani. Charming. ठीक है. Now these are things that you have to respond to, okay? So fashion. Fashion and style that makes sense if it's your own. If you copy, that's what I believe. If you copy somebody else's style and some fashion which doesn't suit you, then it's senseless. I just follow the fashion that suits me. तो फैशन में हर एरा में बहुत सारी चीजें होती है ना, तो आप जरूरी नहीं हर चीज आपको अच्छी लगे. लोग क्या करते हैं, वो करते जरूर है चाहे अच्छी लगे ना लगे. सो आपको उसी में से निकालना होता है आप पे क्या अच्छा लगे. सो इट हैज टू बी योर ओन. Okay. Acting. Acting is an art. So you can't learn it. You can polish your skills, but it's either it's within you or it's not there. You can't learn acting. Okay. Cancel culture. What culture? Cancel culture. You know, जब social media पे लोग cancel करना शुरू कर देते हैं लोगों को, that. I think वो उसके ऊपर एक्चुअली सोशल मीडिया, ये थोड़ा सी लंबी बात है कि इसमें हर एक की रीच में आ गया है. एक तो सोशल मीडिया ना, एवरीबडी हैज एक्सेस टू. उसमें किसी भी एज ग्रुप का, किसी भी माइंडसेट का इंसान, पढ़ा लिखा, अनपढ़, हर किस्म के लोग उसमें हैं. तो वो बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है ना लोग आ चुके हैं. सो उसमें एक वो आप वो नहीं कर सकते कि किसी को रोक नहीं सकते. हर एक का अपना माइंडसेट है. सो एवरीबडी हैज देयर ओन ओपिनियन. तो वो आप सुने, आपको जो चीज सही लगती है वो रखें. अदरवाइज वही कैंसिल कल्चर जो है वो उसको आप है तो सही, बट आपको खुद जज करना होता है कि क्या सही है क्या नहीं.
Okay, सही. Nepotism. सेम आई थिंक उसके ऊपर भी यही जो बात मैंने कही है कि Okay. यही अप्लाई होती है और सोशल मीडिया से ही बहुत सारी चीज़ों ने जो है उसकी बर्थ सोशल मीडिया है तो अब ना हर एक को लगता है कि उसका राइट है हर चीज़ में टांग अड़ाना सो आई थिंक इस तरह की और दो चार टर्म्स हैं जो कि हम सोशल मीडिया की पैदावार है और उसने उसको काफी बूस्ट दिया है तो इट्स ऑल द Okay. सेम ठीक है. Interviews. इंटरव्यूज समटाइम्स इट्स बहुत मुश्किल हो जाता है और कभी कभी जो है ना ऐसा लगता है कि एक बिजनेस बन गया है बहुत Right. सारे लोगों ने कोविड में ये शुरू किया इंस्टाग्राम अकाउंट्स खोले और इतने लोग आते हैं कि हमने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया उसके लिए सो यू कांट टॉक अबाउट सेम थिंग्स एवरी टाइम एवरी डे कभी कभी होता है सही होता है सो बट आप फिर सही प्लेटफॉर्म पे जाएं जहाँ लोगों को कुछ बता भी तो सकें अब हर एक के साथ आप बैठ के रोज इंटरव्यू नहीं कर सकते दैट्स नॉट Right. पॉसिबल रैंडमली किसी ने कोई कोई यूएस में है कोई कश्मीर में है कोई कनाडा में है कोई लाहौर में है तो सबने बहुत सारे आप जिसको नहीं जानते आप उससे कनेक्ट होना थोड़ा सा मुश्किल होता है बिकॉज लोगों को ये समझना चाहिए कि जैसे कोई एक बोल रहा है इंटरव्यू के लिए ऐसे 10 लोगों ने और बोला था तो किसके साथ करें वो ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो जिसकी रीच से लोग कुछ सुन लें कुछ लोगों को फायदा भी हो जाए Okay. Fans. फैंस फैंस आर एवरीथिंग बस फैंस होते हैं तो आपकी फैन फॉलोइंग होती है आपके काम से और फैंस को रिस्पेक्ट देना बड़ा ज़रूरी है बिकॉज वो आपसे मोहब्बत करते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं और स्पेशली सोशल मीडिया इंस्टाग्राम इंस्टा स्टोरी स्नैपचैट इसकी वजह से जो है ना बहुत इंटरेक्शन करीब हो गया है लोगों को हर वक्त आपके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं लोगों को पता होता है आप क्या कर रहे हैं तो फैंस के लिए भी एक थोड़ी सी वो जो पहले एक होता था ना एक सस्पेंस एलिमेंट कौन ये क्या कर रहा होगा ये कैसे Right. खाता होगा ये कैसे सोता होगा कैसे उठता होगा कैसे काम करता होगा वो चीजें अब वो सस्पेंस नहीं है अब सब लोगों को सब पता है तो वो इंटरेक्शन फैंस के साथ बड़ी क्लोज होगी सही. ठीक है. The last question I have for you is, what are the 3 things that you want to achieve by the end of 2020? By the end of 2020 आई थिंक पर्सनल कुछ एक दो चीजें हैं और अगर शोबिस के उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो आई वांट टू do something different other than what we usually doing. We've been doing it for years. So I want to break the ice and get into something जो हम लोग खुद बाहर के प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे होते हैं जैसे नेटफ्लिक्स हो गया या मूवीज होती हैं वो देख रहे होते हैं सो I want to create something अपने on my own as a producer or as an actor base some different character I want to do और that I'm looking forward तो उसके ऊपर मैं काफी अच्छे से बेस तो बना रहा हूँ I hope things work out and I do some good international work. Okay, good. Thank you so much for being here, Ijaz. It was lovely talking Thank to you. you. Thank you If for you have having any, me. no, thank you And for being. I love Mango Bars. Oh my God, thank you so much. हाँ And if you have any parting words for people who are watching, please do let them know. वही जो मैं बीच में बोल रहा था बार बार बात कि अब आप लोग सब लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा एक तो सोशल मीडिया पर जरूरी नहीं होता कि आप इस खास तौर पर उन लोगों के लिए जो खामखा जाके ट्रोलिंग करते हैं लोगों की कभी अपने आप को उस जगह पर रखकर देखा करें कि कितना मुश्किल हो जाता है उसके लिए जिसके लिए आप बोल रहे होते हैं बगैर आपको फैक्ट्स पता नहीं होते हमेशा याद रखें एक साइड की स्टोरी आती है हम बगैर देखे फॉरवर्ड करते जाते हैं इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया उसने ये कर दिया हमेशा दोनों साइड की स्टोरी सुना करें और फिर अपना जजमेंट जो है वो अपने पास रखें अगर ऐसा है जिससे कोई हर्ट होगा तो उसको सोशल मीडिया पर ना डाला करें बहुत ज्यादा क्लस्टर हो जाता है बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है और नेगेटिविटी
जितनी आप अपने अंदर लाएंगे उतनी ज्यादा आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी को जो आप अट्रैक्ट करेंगे, अपने अपने आप को पॉजिटिव लोगों में रखें, नेगेटिव लोगों से निकालें। और यहाँ पर भी जो बहुत सारे लोग उल्टी सीधी चीजें लिख रहे होते हैं, क्या फायदा होता है उस चीजों का, ये जरा सोचा करें। गालियां लिख रहे हैं, उससे आप खुद एक्सपोज हो रहे होते हैं कि भाई आपकी कैसी आपके माँ बाप ने तरबियत की है। तो वो लोगों को ये पता चल रहा होता है, लोग कोई आपको देख के ये नहीं कह रहा होता यार ये देखो क्या इसने गाली लिख दी यार, क्या जबरदस्त आदमी, ऐसे नहीं होता। आप खुद एक्सपोज हो रहे होते हैं कि आपके घर क्या आपका माइंडसेट है, आपके माँ बाप ने क्या आपको सिखाया है। सो ये सारी बातें नेगेटिव आदमी कर रहा होता है। जब आप नेगेटिव बातें करेंगे तो सब नेगेटिव चीजें ही आपके ऊपर आएंगी, अट्रैक्ट होंगी, आपका कोई काम भी अच्छा नहीं होगा। सो ट्राई टू रिमेन पॉजिटिव, और पॉजिटिविटी ही अब लोगों को नजर आनी चाहिए आपके। तो आप ये करके देखें, आप चेंज हो जाएंगे, आप लोगों के साथ चीजें अच्छी होने लगेंगी, आप के काम सही होने लगेंगे। जो नेगेटिव आदमी सोच रहा था सुबह उठता ही हुए मैं उठ के गालियां दूंगा इसको उसको उसको, वो सारी जिंदगी वैसे ही रहता है, कुछ का हाल आई थिंक Perfect. एग्री करेंगे बहुत सारे लोग। Yeah. Okay. Thank you so much, Ajaz, and थैंक यू all the all your projects. And please take care and stay safe. थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।